Hey, what's up, guys? Welcome back to online classes, and have a very pleasant morning. And I believe you all have had a very fantastic weekend since you had holidays in between, also, right? So, I enjoyed it thoroughly this weekend and holiday both. So, let's start without doing further delay, okay? With a new day and a new topic, we are going to start, that is A Day in the Country, Unit 2, Section 1 of New Pathways book, written by Anton Chekhov. Alright, so let us start with the reading A Day in the Country. I believe you all will read it if you have the book besides you. So it's about two children and a cobbler named Trinity who teaches them valuable lessons about nature. So I believe that you have understood this chapter is based on the nature, and we all have been through this experience of nature almostly in our life and your life also, right? So let us start the reading. Between 8 and 9 o'clock in the morning, a dark leaden colored mass is creeping over the sky towards the sun. A red zigzag of lightning gleam here and there across it. There is a sound of faraway rumbling. A warm wind frolics over the grass, bends the trees and stirs up the dust. In a minute, there will be a spurt of May rain and a real storm will begin. 5 o'clock. A little girl of 6 is running through the village looking for Trinity the cobbler. The white-haired, barefoot child is pale. Her eyes are wide open. Her lips are trembling. Let us do the word meaning first. Leaden colored here. Leaden colored is like एक जो डीप स्याही कलर जो होता है, जो इंक यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लेडन कलर्ड. मास मीन्स हैवी. क्रीपिंग मतलब ऐसा क्रीप करना, रेंगना या फिर रेंग के आगे बढ़ना. zigzag, you have seen the zigzag bristles you have in your toothbrush. I hope you are using zigzag bristles. Gleam is like जो रोशनी इधर से उधर तीतर बितर होकर निकलती है, दैट इज़ कॉल्ड ग्लीम. रंबलिंग, व्हेन टू थिंग्स क्रॉसेज ईच अदर, एक साउंड जो लंबा सा साउंड होता है, दैट इज़ कॉल्ड रंबलिंग. फ्रॉलिक, यू हैव सीन it, here it is written moves playfully, right? Steer, mix करना. Steer मतलब mix करना. You might have read it in chemistry, chemicals. Steers. Bends मतलब झुकना. Spurt to gush out from with a full-fledged speed. स्पर्ट मतलब फब्बारे की तरह कहीं से निकलना, बरस पड़ना, लाइक दैट. ओके. वेयर फुटेड इज़ लाइक नंगे पाँव. वाइट हेयर्ड मीन्स जिनके बाल जो उजले होते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, राइट. इफ़ यू आर हैविंग स्टिल एनी प्रॉब्लम इन वर्ड मीनिंग, you may write down in the comment section. I'll just reply of that. Okay, so let me now explain the read para. And this para, the narrator is telling that it was the time around 8 to 9 o'clock in the morning. 8 से 9 बजे का टाइम हो रहा था. जिस टाइम पे आप अभी वीडियो देख रहे होगे सेम टाइम होगा. एंड एट दैट टाइम इन स्काई, आसमान में जो सन निकल रखा था एग्जैक्टली, नॉट निकल रखा था, उसको चारों तरफ से एक घनघोर अंधेरा जो है, बिल्कुल डीप डार्क लेडन
कलर जो है बिल्कुल मास बहुत बड़ी मात्रा में जो है उसको अपने आगोश में ले रहा था। क्रीपिंग मिस उसको घेर रहा था रिंग के चारों तरफ से। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द सनलाइट, जो सन का लाइट होता बहुत ज़्यादा लाइक पावरफुल होता है, तो वो उस अंधेरे को काटते हुए चारों तरफ से ऐसे निकल रहा था जैसे यू माइट हैव सीन दैट if the sun is surrounded by some dark leaden cloud, but still the light comes out from different, जो disperse होता है लाइट, उस तरीके से वो लाइट निकल रहा था उस डार्क लेडन कलर्ड जो क्लाउड्स थे उससे। और कहीं दूर आसमान में ही जो है गर्जना, जो आकाश में जो बादल टकराते हैं तो एक जो साउंड होता है वो रंबल हो रहा था, वो आवाज़ें आ रही थी। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा एक गर्म हवा जो है बिल्कुल फ्रॉलिक मूवमेंट जो है वो ग्रास को ऐसा हिला रहा था मानो कि वो डांस करने के मूड में हो, एंजॉय करने के मूड में हो। और वो जो तेज़ हवाएं थी वो पेड़ों को बेंड्स कर रही थी, ट्रीज़ को बेंड्स कर रही थी। और कुछ ही समय के बाद जो है डस्ट, जो धूल था, वो उस हवा में मिक्सअप होता जा रहा था, स्टीयर हो रहा था, मिक्सअप हो रहा था। 1 मिनट के अंदर में ऐसा लगा मानो कि जो मे रेन है, जो मे मंथ का जो रेन है वो बिल्कुल बरसने वाला है और एक बहुत बड़ा स्टॉर्म जो है शुरू होने वाला, आंधी तूफान आने वाला है। नाउ देन आफ्टर फैकोला, फैकोला इज़ अ गर्ल नेम। फैकोला एक लड़की का नाम है जो कि 6 इयर्स की है। वो अपने विलेज में दौड़ते हुए, गलियों के बीच से दौड़ते हुए अपने टीचर, हर टीचर नेम इज़ ट्रेंटी एंड ही इज़ अ कॉबलर, जो कि एक बूढ़ा है, वाइट हेयर्ड है और या एजड पर्सन यू कैन से है। उसको बिल्कुल ही यू कैन कॉल इट लाइक ढूंढते हुए, दौड़ते हुए नंगे पाँव वो उसको ढूंढ रही थी। हर आइज़ वर वाइड ओपन एंड हर लिप्स वर ट्रेम्बलिंग। उसकी आंखें बिल्कुल चौड़ी खुली हुई थी और उसके होठ जो है ट्रेम्बल कर रहे थे, मतलब काँप रहे थे, राइट। सो let us read the next para to understand what was happened after that. Now, uncle, where is Trinity? She asks everyone she meets. No one answers. They are all preoccupied with the approaching storm and take refuge in their huts. At last, she meets silently Silich, the sacristan, Trinity's friend. He is coming along, staggering from the wind. Uncle, where is Trinity? At the kitchen gardens, answers silently. The girl runs behind the huts to the kitchen gardens and there finds Trinity, the tall, old man with a thin pock-marked face, very long leg and bare feet, dressed in a woman's tattered jacket, standing near the vegetables plot, looking with drowsy eyes at the dark storm cloud. On his long crane-like legs, he sways in the winds like a starling coat. Now, dear student, in this para there are many word meanings which you need to understand. Like the first one, here it is written sacristan. Sacristan is a person in charge of sacristy, and sacristy is a room in a church where articles of worship are kept. जो सामान पूजा के लिए चर्च में जहाँ रखा जाता है उसको बोलते हैं सैक्रिस्टी, और जो उस रूम का इंचार्ज होता है उसको सैक्रिस्टियन बोलते हैं। दूसरा है, नेक्स्ट इज स्टार्लिंग कोट। स्टार्लिंग कोट, it's a songbird with a straight beak. Now copse is a thicket grove
and a growth of small trees. Okay. If you are having any more problem in spelling or word meaning, something like that, you may write down in the comment section. I'll just reply you with the answer of that. Okay. So when she goes through the village and she is looking for Trinity, when she meets anyone, वो जब भी किसी से, जब उसके रास्ते में जो कोई उससे मिलता, वो सबसे एक ही सवाल पूछती है कि अंकल आपने ट्रिनिटी को देखा है। वो सब लोगों से एक ही सवाल पूछती है, लेकिन उसके सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता। एंड दे ऑल प्री ऑक्यूपाइड विद देयर अप्रोचिंग स्टॉर्म। और वो सारे लोग जो है वो खुद में बिज़ी हो जाते हैं, बिकॉज़ जिस तरीके का आंधी तूफान आने वाला होता है, तो वो उस मोमेंट पे अपने घर में जाकर के स्थान लेना चाहते हैं, जगह लेना चाहते हैं, ताकि वो उस स्टॉर्म से, उस आंधी तूफान से बच सके। लास्ट में वो सेलेंटली सिलिच करके एक व्यक्ति है, उससे मिलती है, जो कि एक सैक्रिस्टन है। आई हैव एक्सप्लेन्ड व्हाट इज़ सैक्रिस्टन। जो सैलेंटली सिलिच है वो ट्रिनिटीज़ का फ्रेंड है। ट्रिनिटी जो टीचर है, कॉबलर है फैकोला का, उससे मिलती है, उससे पूछती है कि सैक्रिस्टन ट्रिनिटी कहाँ है। तो वो सैक्रिस्टन बोलता है कि इज़ कमिंग अलॉन्ग विथ स्टैगरिंग फ्रॉम द विंड। और वो बोलता है कि वो उस विंड के साथ में विंड वो आ रहा है, जस्ट स्टैगरिंग फ्रॉम द विंड। वो थोड़ा कुछ विंड जो आंधी तूफान आने वाला, उससे बचाव का कुछ प्रबंध इंतजाम कर रहा है। अगेन सी आस्क, फैकोला फिर से उससे पूछती है वेयर इज ट्रिनिटी। तो वो बोलता है कि एट द किचन गार्डन, आप किचन गार्डन के पास में जाके देखो, वहाँ पे वो आपको मिल जाएगा। तो लड़की वहाँ से दौड़ के जाती है किचन गार्डन के पास। जहाँ पे वो जाती है तो देखती है कि ट्रिनिटी वहाँ पे है। हियर उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, दैट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड बाय द नरेटर, कि वो एक लंबा इंसान है, दुबला पतला, पोक मार्क फेस्ट है, उस पर चेहरे पे कुछ मार्क्स बने हुए हैं। लंबे लंबे पैर हैं उसके, जो कि नंगे पैर हैं। अभी सिंस ही वाज इन गार्डन, तो ही हैवेंट बोर एनी स्लीपर्स और समथिंग लाइक दैट। और उसने ऐसा ड्रेस पहन रखा था जो कि एक वुमेन टैटूड जैकेट है, राइट। और वो गार्डन में वेजिटेबल प्लॉट, जहाँ पे सब्जियाँ बोई जाती है, उपजाई जाती है, वहाँ पे खड़ा होकर के वो लुकिंग विद द ड्राउजी आइज़ एट द डार्क स्टॉर्म क्लाउड। ड्राउजी आइज़ इज़ लाइक छोटी छोटी आँखें, जैसे नींद आती है तो आँखें छोटी हो जाती है साइज़, दैट इज़ कॉल्ड ड्राउजी, फीलिंग स्लीपी टाइप आइज़। ओके, सो लुकिंग विद ड्राउजी आइज़। और वो छोटी छोटी आँखों से जो स्टॉर्म क्लाउड आ रहा था उसकी तरफ वो देख रहा था। On his long crane-like leg, he sways in the wind like a starling coat. Okay, a starling coat is, I've told you, a songbird with a straight beak. वैसे उसके फेस का स्ट्रक्चर है कि वैसे उसका चेहरे का के बारे में नरेटर इज टेलिंग। Now Fäkola, she asked Uncle Trinity. The white-headed girl addresses him, Uncle डार्लिंग। तो वो अंकल ट्रिनिटी को बोलती है। उसी बीच जो लड़की है उसका भी स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि वाइट हेडेड गर्ल, उसका जो बाल का जो कलर है वो भी वाइट है। वो उसको जवाब देते हैं, डार्लिंग बेटा। Trinity bends down to Fäkola and he grim's face is overspread with a smile such as come into people's face when they look at something little foolish and absurd but warmly loved. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रिनिटी है वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है, बिकॉज द साइज ऑफ द फैकोला इज क्वाइट शॉर्टर दैन ट्रिनिटी, बिकॉज नरेटर ने नरेट किया है, बताया है दैट Trinity was having long legs, so his height must be around 6 feet, something like that. So he first of all he bends, एक छोटे बच्चे से प्यार से जैसे बात करते हैं उसके लेवल पे आके, उसके साइज के लेवल पे आके उस तरीके से। एंड हिज ग्रीम फेस इज़ ओवरस्प्रेड विथ स्माइल।
उसके चेहरे पे एक मुस्कान जो आती है जब वो बच्चे से बात कर रहा था. द नरेटर इज़ टॉकिंग अबाउट दैट, बिकॉज अगर जिस जिस चीज़ को लेकर के फैकोला बहुत ज़्यादा परेशान थी उसको और बढ़ा चढ़ा करके डरा के बताया जाता तो फैकोला मे हैव स्केयर्ड मोर, वो और ज़्यादा डर जाती. सो द फर्स्ट थिंग द ट्रिनिटी डन वाज दैट टू रिलीज़ द प्रेशर ऑफ फियर. डर का जो वो एक माहौल बना हुआ था उसके चेहरे पे, उसको कम करना उसकी पहली प्रायोरिटी थी. एंड ही सेज people's face when they look at something little foolish and absurd but warmly loved. Fäkola, he says tenderly, where have you come from? वो पूछता, अच्छा बेटा तुम कहाँ से आ रहे हो. वो बहुत प्यार से उससे पूछता है. Uncle Trinity, says Fäkola with a sob tugging at the lapel of the cobbler's coat. Brother Danilka has had an accident, come along. तो फैकोला बोलती है, अंकल ट्रिनिटी सुबकते हुए बोलती है और थोड़ा वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान होती है. तो उसके कंधों पे वो अपना सर रख करके उससे वो बोलती है सुबकते हुए कि उसके भाई डैनक्ला का जो है एक्सीडेंट हो चुका है, आप मेरे साथ में आइए, चलिए उसको देखते हैं. नाउ Trinity, as you can see here in this picture, right? So Uncle Trinity उससे पूछते हैं, what sort of accident? Oh, what thunder! Holy, holy, holy! What sort of accident? In the counts of corpse, Dankla stuck his hand into a hole in a tree and he cannot get it out. Come along, uncle. Do be kind and pull his hand out. How was it? He put his hand in. What for? He wanted to get a cuckoo's egg out of the hole for me. The day has hardly begun and already you are in trouble. Trinity shook his head. Well, what am I to do with you now? I must come, little child. Now let me explain it to you. When Fäkola says that his brother has met with an accident, तो अंकल उससे पूछते हैं कि किस तरीके का एक्सीडेंट हुआ. ये हे भगवान, हॉली हॉली मीन्स लाइक ही जस्ट रिमेंबरिंग बिकॉज उस टाइम पे थंडर जो है आकाश में गर्जना हो रही थी, आकाश में बादल गरज रहे थे, तो वो उससे भी परेशान था और वो भगवान का नाम लिए जा रहा था कि कुछ बुरा कुछ ज़्यादा बुरा ना हुआ हो. तो वो उससे पूछता है किस तरीके का एक्सीडेंट हुआ है. सो इन द काउंट्स ऑफ कॉप्से यू हैव आई हैव एक्सप्लेन्ड व्हाट इज़ कॉप्से, अ थिकेट ग्रोव और ग्रोथ ऑफ स्मॉल ट्रीज़. एक ऐसा पेड़ जिसमें थोड़ा सा होल टाइप का बना होता है, राइट, जहाँ पे वर्ड्स जो है रेस्ट करते हैं. तो वो बोलती है कि वो एक्चुअली जो है एक कुकू का एग उसमें पड़ा हुआ था और वो उस फैकोला के लिए उसका भाई डैंकलिन जो है वो एग को निकालने के लिए गया उस पेड़ से और उसका हाथ जो है उस पेड़ में फंस गया, उस होल में फंस गया. तो ट्रिनिटी अंकल बोलते हैं कि अभी तो दिन शुरू हुआ और तुम लोगों ने इतना परेशान कर दी, तुम लोग इतने परेशान हो गए, राइट. अब तुम लोग परेशानी में हो तो मैं तो अभी कुछ कर नहीं रहा हूँ, चलो अभी मैं क्या करूँगा, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, ठीक है, लेट्स गो लिटिल चाइल्ड, आई मस्ट कम लिटिल चाइल्ड, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा और तुम्हारी मदद करूँगा. देन आफ्टर ट्रिनिटी कम्स आउट ऑफ द किचन गार्डन एंड लिफ्टिंग हाई his long legs begins striding down the village street. He walks quickly without stopping. Fäkola can hardly keep up with him. They come out of the village and turn along the dusty road towards the Count's copse that lies dark blue in the distance. It is about a mile and a half away. The dark clouds have by now covered the sun, and soon afterwards there is not a speck of blue left in the sky.
it's grown, it grows dark. Now let me explain to you that in this para, जब अंकल ट्रिनिटी और फैकोला जो है उसके भाई की मदद के लिए आगे चलते हैं, तो लंबे लंबे पैरों से, लंबे लंबे कदमों से वो विलेज के स्ट्रीट में, विलेज की गलियों को पार करते हुए जो है वो जल्दी से वो उसके भाई तक पहुंचना चाहते हैं। इस बीच में वो रुकना भी नहीं पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी वो तेज़ कदमों से चल के वहाँ पे पहुँच जाए बिना रुके। और फैकोला जो है उनके लंबे लंबे जो पग हैं या डग है, जो कदम है, उसका बराबरी नहीं कर पाती है और वो पीछे रह जाती है। बट स्टिल सी ट्राइज़ टू कोप अप विद दैट, वो उस फासले को मैनेज करती है तेज़ कदमों से चल करके। और फिर वो गांव के उन रास्तों से होके गुजरती है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डस्टी रोड है, बहुत तेज़ हवाएं चल रही है, आंधी तूफान आ रखा है, धूल भरे रास्तों से होते हुए वो उस पेड़ तक पहुंचना चाहते हैं। इस बीच जो है आसमान पूरा, जो सन है, पूरा बिल्कुल डार्क घिर चुका था, काले बादल बिल्कुल छा चुके थे और ऐसा लग रहा था अभी जैसे मानो बिल्कुल अंधेरा हो गया। और दूरी जो है अभी भी 1.5 माइल अवे, करीब 3 किलोमीटर्स के लगभग का जर्नी था, इतना दूर वो पेड़ था। द फर्स्ट रेन ड्रॉप्स बिग एंड हैवी like dark dots on the dusty road. A big drop falls on the Facola's cheek and glides like a tear down her chin. The rain has begun, mutters the cobbler, kicking up the dust with his bare, bony feet. That's fine, Facola, old girl. The grass and the trees are fed by the rain, as we are by bread. And as for the thunder, don't you be frightened. Why should it harm a little thing like you? इसी दरमियान, इसी बीच जो है बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें, बहुत बड़ी बूंदें, कभी कभार यू हैव एक्सपीरियंस दैट, बहुत बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें जो है जब अचानक से धरती पे गिरना शुरू होती है तो उससे चोट भी लगता है, राइट। तो ऐसा हुआ कि फैकोला के ऊपर जब वो बूंदें गिरी बारिश की तो ऐसा लगा जैसे वो, एक तो जो डस्टी रोड था वो अभी बड़ी बड़ी बूंदों के कारण थोड़ा कम हो गया डस्ट, बट स्टिल जो है वो बारिश की बूंदें फैकोला के सर से होते हुए नीचे चिन के तरफ आता है। ऐसा लगता है जैसे मानो कि वो उसके आंसू निकल रहे हों, वो रो रही हो अपने भाई के एक्सीडेंट को देख करके। और इसी बीच जो है कॉबलर ट्रिनिटी मटर करता है, बुदबुदाता है, भुनभुनाता है कि अभी बारिश शुरू हो गई है। एंड किकिंग अप द डस्ट विथ हिज बेयर फुट, और वो जल्दी से वो मतलब उस धूल भरे रास्ते से होते हुए पहुंचने की कोशिश करता है। साथ ही साथ वो फैकोला को बोलता है कि सब कुछ अच्छा होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। और उसके साथ वो ये भी बोलता है कि ये जो ग्रास और ये ट्रीज जो है वो उनको अभी ये रेन खाना खिलाने वाले हैं, भोजन कराने वाले हैं। बिकॉज़ हम लोग तो रोटी और चावल खा करके अपना पेट भर लेते हैं, बट दिस ग्रास एंड ट्रीज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हॉट समर ह्यूमिड डे उनको कोई खाना नहीं मिल पा रहा, तो उनको इन बारिश की वजह से खाना मिलेगा। और तुम्हें इस थंडर से डरने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारे जैसे छोटे और प्यारे बच्चों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। Alright, dear students, today we have reached to the end of session and we'll continue this tomorrow. I hope you have understood this story completely, the first part of this story, since this story is so long, so we'll continue and we'll try to finish it in 3 parts. So this was the first part. We'll meet next day. Till then, bye and take care. Have a nice day. Thank you.